ડૉક્ટર અંજુ શર્મા અને સમીર શુક્લ આપની સાથે વાત કરશે. આપ જાણો છો કે આદરણીય અંજુ શર્મા મેડમ સરકારમાં ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે કાર્યરત છે અને આધુનિક ભારતમાં વેપાર અને વ્યાવસાયિકતામાં ગીતા એ વિશે આજે આપણી સાથે વાત કરવાના છે. મેન્ટોર તરીકે સમીર શુક્લ એમની સાથે જોડાશે. તો આ સેશનનો પ્રારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપ સૌને આપનું સ્થાન ખૂબ તાળીઓના સન્માન સાથે આદરણીય ડૉક્ટર અંજુ શર્મા મેડમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સમીર શુક્લ સાહેબનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. પ્લીઝ પ્લીઝ સર. આજના દિવસની આ બીજી સેશન આધુનિક ભારતમાં વેપાર અને વ્યાવસાયિકતામાં ગીતા. સરકારમાં કાર્યરત ઉચ્ચ અધિકારી ડૉક્ટર અંજુ શર્મા મેડમ આજે આપણી સાથે આ વિષય પર વાત કરશે. આપ સૌ જાણો છો કે આ વિષયના સંદર્ભે માત્ર નહીં પણ અન્ય કોઈ વિષયના સંદર્ભે પણ આદરણીય મેડમ એમની સંપ્રજ્ઞતા સાથે સતત ભાવ વિશ્વને જ્ઞાન વિશ્વને આપણા સુધી વહેંચતા રહ્યા છે. અલબત્ત સરકારમાં ઉચ્ચ અધિકારીના બોજાને કારણે એમનું જ્ઞાન લોકો સુધી જે રીતે વિસ્તરવું જોઈએ એ પહોંચી નથી રહ્યું, કારણ કે એમની પાસે બીજી કેટલીક જવાબદારીઓ છે. એટલે એ પણ ખૂબ લર્નેડ બહુ ઓછા અધિકારીઓ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે જે કોઈ પણ વિષયના સંદર્ભે સજ્જતાથી બોલી શકે, લખી શકે અને એની પ્રસ્તુતિ કરી શકે. આપણું સદભાગ્ય છે કે બહુ ઓછા લોકોને ખ્યાલ હશે કે આદરણીય મેડમ ગીતાથી માંડીને અન્ય આપણી સંસ્કૃતિ વિષયક ગ્રંથ અને જ્ઞાન વિશે બખૂબી વાત કરી શકે છે. મેડમ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. એમની સાથે એવા જ મેન્ટોર સજ્જ વ્યક્તિ સમીર શુક્લ સાહેબ પણ આપણી સાથે છે. એમનું પણ અમે સર અભિવાદન કરીએ છીએ. તો આદરણીય મેડમના અભિવાદન માટે હું સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ, સમીરભાઈને વિનંતી કરીશ, આદરણીય સમીર શુક્લને, કે આદરણીય મેડમ ડૉક્ટર અંજુ શર્માનું આપણે અભિવાદન કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ડૉક્ટર અંજુ શર્મા મેડમ અને ખૂબ ખૂબ આભાર સમીરભાઈ. તો ઓકે સર, તો હવે પછીનું માઇકનું સૂત્ર સંચાલન આદરણીય સમીર શુક્લ સાહેબને સુપ્રત કરું છું. So we have a IAS officer, so I think medium of conversation will be English in a way. But with her, I think I'll have to introduce her in a different context. આપણા ભારતમાં છે ને દર વર્ષે લગભગ 10 લાખ છોકરાઓ યુપીએસસી આપે છે. એટલે એમના માટે યુપીએસસી પસાર કરવી એ એક મોક્ષ છે, મોક્ષ. એટલે એમનો મોક્ષ 22 વર્ષે થઈ ગયો. Now that is an age which is very difficult age when you are just 22 and you become an IAS officer. There is an entire life to be lived thereafter, and that life is very, for us, all of us are facing challenges, so we are very busy. She has arrived. So what happens when somebody arrives at that early age? So very natural thing that happens is that people have to find some other meaning to life, some other alternative understanding of what it is. And what IAS does is that it throws you in company of the poorest of the poor of this country. So you become a collector, you get to see the poor part of India. So you have to become philosophical to actually absorb the kind of shock that this sense of empowerment brings you. Because you are extremely powerful, you are there, you see extreme problems, you see you can solve some, you can't solve some, and that gives a person a journey. So what she did subsequently is maybe that acquisition of wisdom. And then she did something very interesting. And one of the reasons why I have more engagement with this entire issue is that
she did a PhD on spiritual intelligence. Now, spiritual intelligence is something that has not been quantified till now. The world is talking about it, the corporate world is talking about it. We are all understanding that we are all facing issues because we don't have spiritual support. But nobody has tried to deal with it mathematically. So what she did subsequently is to write a thesis on spiritual intelligence, and that hopefully is going to be converted into also a platform for making it more tangible for corporate management. But while she was going through all that, she wrote a very interesting book, which is called Corporate Monk. And Corporate Monk is basically life of a intelligent, successful person in India who has the standard challenges. And they are basically taking away the spiritual part from his life and giving him a lot of conflicts. He is not realizing what he is losing. See, all of us are actually suffering because our spiritual intelligence is not increased, it is depleted over time. But we have nobody to tell us that this is our problem. But somehow a mentor arrives, and then the entire story is told in a way which is easy for people to understand. So that is something that has made her a very good communicator of an issue which was otherwise not communicated using layman's terms. So with that, I think I'll invite her to quickly talk about what is the way Gita can be used for corporate management. And her experiences are more important than maybe the tangible part of Gita that we all know. So it's her narration of how to resolve problems of life, problems of living rather, not life, using philosophical background that is available for us Indians, using a very ancient text. So with that, I'll invite ma'am to talk about it. And I think we'll need to have the audience settle down because there is I think we'll take 2 minutes. So I think ma'am, I'll invite you now. Yeah, thank you. Gentlemen and ladies of the dais, on the dais. I will prefer to speak in a mix of Hindi and English because that's how I think, and if I speak in some other language, then I may not be able to make a good impression of what I am trying to say. So please bear with me. थोड़ा बहुत हिंदी में भी मैं उसका खुलासा करूँगी. गुजराती की मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, सिर्फ सरकारी गुजराती आती है मुझे, तो साहित्यिक गुजराती नहीं आती. तो सरकारी गुजराती में सरकारी शब्द आपको मज़ा नहीं आएगा. काफ़ी कुछ समीर भाई ने आपको मेरे बारे में बताया. मैं जिस हिसाब से तैयारी करके आई थी वो मुझे एक स्टूडेंट्स की ऑडियंस बताई गई थी. तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पर है, काफ़ी जिन्होंने ज़िंदगी को भी और ज्ञान को, विज्ञान को और साहित्य को और हिंदू धर्म को और हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को, दर्शन को, फिलॉसफी को काफ़ी समझा हुआ है, न सिर्फ ज्ञान योग से पर कर्म योग से भी. तो मैं विषय के साथ न्याय करने की कोशिश करूँगी और मुझे लगता है कि आपको एक थॉट प्रोसेस शुरू करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भगवद गीता जो है वो एक दार्शनिक वार्तालाप है, उपनिषदों का पाठ है ये, और वेदांत जहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है और बेसिकली फिलॉसफिकल ट्रेटाइज है कि जो उस वक़्त हिंदू धर्म का दर्शन था, हिंदू धर्म का जो फिलॉसफी था, वो जब पब्लिक को, जनता को, सामान्य जन को देने की बात आई तो भगवद गीता का उद्भव हुआ, भगवद गीता की शुरुआत हुई वहाँ से. और भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज अथवा विश्व अथवा व्यक्ति, इंडिविजुअल, उसको एक दार्शनिक पर्सपेक्टिव देना. ये बेसिकली उसका और दर्शन शास्त्र है. और
मैं बेसिकली वेदांत में विश्वास करती हूँ और मेरी दार्शनिक यात्रा की शुरुआत, जैसा इन्होंने बताया, मोक्ष प्राप्ति सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज से तो शुरुआत है मोक्ष प्राप्ति की, वो तो कल्मिनेशन नहीं है, वहाँ से तो यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ शुरू हुई जब मैंने दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र में बेसिकली साइंस स्टूडेंट रही हूँ, और जैसे कि मेरे बारे में कहानियाँ चलती हैं वो सब बिल्कुल गलत है। मैं कभी 10th में फेल नहीं हुई, कभी 12th में फेल नहीं हुई। आई बीन अ टॉपर थ्रू आउट इन साइंस एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट हूँ। मैनेजमेंट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं दर्शन शास्त्र की तरफ एज अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज मुड़ी, और वहाँ पर मैंने दर्शन शास्त्र में वेदांत को समझा, वेस्टर्न फिलॉसफी को भी समझा। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब वेस्टर्न फिलॉसफी हम पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी में सिर्फ ज्ञान की बातें करी गई हैं, लॉजिक की बातें करी गई हैं। इंसान को आगे बढ़ने के लिए, इंसान के जो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हर किसी के दिमाग में उठते हैं, उनका उत्तर देने के लिए वेस्टर्न फिलॉसफी में कुछ नहीं है। और जितनी पावर इंडियन फिलॉसफी में है उतनी पावर दुनिया की किसी फिलॉसफी में नहीं है। इसीलिए आज जो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा उत्तम और उच्च कक्षा का दर्शन शास्त्र माना जाता है, क्योंकि ये आपके मन में उठते हुए उन सब प्रश्नों का समाधान लाता है जो आप के मन में इस जीवन के प्रति, इस जीवन की प्रक्रियाओं के प्रति उद्भव होते हैं। तो वहाँ से शुरू होके और वहाँ से यात्रा शुरू हुई जब मैंने वेदांत के बारे में समझा और काफ़ी कुछ समझा। फिर उसे मैनेजमेंट के साथ मैंने कंबाइन करने की कोशिश की कि कैसे हम जो अपनी संस्थाओं में काम करते हैं, हम अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए प्रवृत्ति करते हैं, अपना जो हम कर्म करते हैं, कैसे उसके साथ ये दर्शन शास्त्र जो है वो गीता का वो जुड़ता है और कैसे हमको गाइड करता है और कैसे हमारे प्रश्नों को सुलझाता है। और वहाँ से मुद्दा निकला स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, क्योंकि वेस्टर्न थॉट में इमोशनल इंटेलिजेंस की काफ़ी बात करी गई, क्योंकि वो बुद्धि के बाद इमोशंस, इंटेलेक्ट के बाद इमोशंस, और उसके बाद फुल स्टॉप आ जाता है वहाँ पे। लेकिन कुछ है जो इंटेलेक्ट और इमोशंस के ऊपर है, और हम उसको मन या आत्मा जो भी कहते हैं। कुछ है जिससे हमारा जो बॉडी है उसमें से जो निकल जाता है, कुछ रह जाता है, वो उसकी बात हमारे दर्शन शास्त्र में करी गई है, जो हमको साइंटिफिकली भी समझाता है और हमको यदि हम बिलीफ के तौर पे समझना चाहें तो भी हमें समझ में आता है। तो अब आप इसको एक साहित्यिक प्रक्रिया कहिए या इसको एक धार्मिक प्रक्रिया कहिए कि या इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया कहिए, मेरे हिसाब से तीनों बहुत अलग नहीं हैं। और बौद्धिक प्रक्रिया कहिए तो इंटेलेक्चुअल लिटरेचर एंड इमोशनल स्पिरिचुअल, तो ये चार चीज़ें लगभग कनेक्टेड हो जाती हैं। और हमें इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन सब की अलग अलग स्टेज में बात करी है। उन्होंने भक्ति योग की भी बात करी है, उन्होंने इमोशंस की भी बात करी है, सेंसरी ग्रेटिफिकेशन की भी बात करी है, उन्होंने ज्ञान योग की भी बात करी है, उन्होंने सांख्य योग की भी बात करी है, उन्होंने राजयोग की भी बात करी है, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कर्मयोग की भी बात करी है। तो उन्होंने एक लगभग हमें अध्यात्म के मार्फत एक पूरे हमारे जीवन को एक ब्लैंकेट कवर दिया है, जिसके अंदर हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करके हम अपनी शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अब मुक्ति है या मुक्ति नहीं है, उसके लिए तो ये मानना पड़ेगा कि जन्म है या पुनर्जन्म है या नहीं है, तो इसमें हम ना जाएं कि पुनर्जन्म वाला जो इशू है कि पुनर्जन्म है भी या नहीं है, तो उसमें न पढ़ के हर आदमी शांति की तलाश में रहता है। ये तो बात पक्की है कि हर आदमी को शांति चाहिए, लेकिन फिर भी क्या ऐसा
ऐसा क्यों होता है कि किसी के पास शांति नहीं है, किसी को पीस ऑफ माइंड नहीं है, और हम ही लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस में उलझे रहते हैं कि हम उस शांति को ढूंढ नहीं पाते। और इसी अशांति का वर्णन जब श्री कृष्ण पहले अध्याय में जो उसमें उनकी वो बताई गई है परिस्थिति अर्जुन की, वो आप देखो तो किसी भी कोई भी हम अपना कुछ वेंचर करने जा रहे होते हैं, या तो हम कोई नया जॉब करने जा रहे होते हैं, हम एक करियर के बारे में डिसाइड कर रहे होते हैं, या फिर हम अपना एक गुजरात है तो यहाँ तो धंधा सब करते हैं, तो जब हम अपने धंधे के बारे में सोचने जा रहे थे कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हम करें या नहीं करें, तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा। तो उन्होंने सब कुछ देखा है, अर्जुन तैयार तो हो गए। अब तैयार होके उसके बाद जब वो युद्ध भूमि में आए और उसके बाद उन्हें वो करना पड़ा, तो उनको लगा अरे ये तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो सब रिस्क उनको दिखने लगी कि इसमें तो अर्थ की हानि भी होगी, परिवार की हानि भी होगी, और मैं हार गया तो मेरी हानि भी होगी, और ये सब हानि 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 रिस्क दिखने लग गई, उनको कॉस्ट दिखने लग गई। अब जब उनको कॉस्ट सारी दिखने लग गई और रिस्क दिखने लग गई, अब जब तक आप रिस्क नहीं लोगे किसी भी बिजनेस में, किसी भी एक्टिविटी में, मैं बहुत ही एक आपको प्रैक्टिकल तौर पे इसको समझा रही हूँ, मैं बहुत आध्यात्मिक तौर पे नहीं जा रही हूँ, कि हम यदि रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम उस कार्य में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो उस रिस्क टेकिंग नेचर को, जो कि किसी भी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की, किसी भी इवन हमारे जीवन की एक्टिविटी, यदि हम किसी से शादी भी करने जा रहे हैं, तो आई डोंट नो किसी ने रन अवे ब्राइड वो मूवी देखी हो, तो उसमें जो वो लड़की होती है वो सब शादी वादी के लिए तैयार कर लेती है, लेकिन जैसे ही शादी वाला दिन आता है और उसे लगता है कि अब मैं बंधने जा रही हूँ एक आदमी के साथ, तब उसको सारी उसकी नेगेटिव चीज़ें दिखने लग जाती हैं, सारी रिस्क दिखने लग जाती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, और वो भाग लेती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर उसका सारथी श्री कृष्ण नहीं है। तो इस रिस्क टेकिंग नेचर को उन्होंने बहुत ज़्यादा बताया है कि जब तक हम लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, और फल की तो वो बात करते ही नहीं है, तब तक हम अपना कर्म नहीं कर पाएंगे, और यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। अब हर चीज़ में रिस्क है, और आप करेंगे नहीं कुछ भी, क्योंकि रिस्क देखेंगे, और रिस्क आप बेयर नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, घर में बैठे रहेंगे। तो घर में बैठे रहेंगे तो कभी भी आप जहाँ बने रहने के लिए आए हैं, जहाँ जाने के लिए आए हैं, वहाँ नहीं जा पाएंगे। अब आप यदि देखें तो एक जानवर भी होता है, वो भी रिस्क लेता है। एक छोटी सी चिड़िया, वो भी अपना खाना बटोरने के लिए जाती है, वो भी रिस्क लेती है। उसे भी पता है कि कोई भी सांप आ जाएगा, या बिल्ली आ जाएगी, या कुछ भी होगा, या मेरा कोई उसको शिकार भी कर सकता है, उसको भी सब पता है, लेकिन उसको वो रिस्क लेनी पड़ेगी, उसको वो काम करना पड़ेगा, उसको वो अपना कर्म करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को उन्होंने बहुत एम्फसाइज़ किया है कि हमें जीवन में आने वाली अड़चनों से और जीवन में आने वाले सेटबैक्स जो होते हैं, जो हमको नुकसान हो सकते हैं, पॉसिबल नुकसान हो सकते हैं, या नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनसे हमें डरना नहीं चाहिए। और हमारा, क्योंकि कर्म ही हमारा मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का, इसलिए हमें उन रिस्क्स को वे करके और अपने इसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो उन्होंने बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि साथ साथ में आप देखें तो पूरी गीता तो बहुत बड़ी है, बट पूरी गीता में उन्होंने कहीं भी कि आप कर्म करो तो मतलब तलवार ऐसे ऐसे चला दो, ऐसे उन्होंने कहीं भी बात नहीं करी है। उन्होंने क्या कहा है, योग कर्मसु कौशलम। और उससे पहले क्या बोला है उन्होंने,
योगस्थ कुरु कर्माणि, कि अपना जो कर्म है, कर्म के बगैर छुटकारा नहीं है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अपना कर्म आप कैसे करेंगे? अपना कर्म योग में स्थित होकर करेंगे। और योग में स्थित कैसे होंगे? कि अपने कर्म में कुशलता ही योग है। तो सबसे पहली बात यह है कि कर्म में कुशलता ही योग है, कि अपना जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं, आज गृहिणी है तो अपना खाना बना रही हैं, तो आज हम अपना फाइल पे लिखते हैं या अपना काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, टीचर है टीचिंग करती हैं, बिजनेसमैन है वो अपना धंधा करते हैं, जर्नलिस्ट है वो अपना आर्टिकल लिखते हैं। यदि पूरी कुशलता से वो कार्य नहीं किया जाएगा तो आप योग में स्थित नहीं होंगे। तो पूरी कुशलता से कार्य जब आप करते हैं तब आप योग में स्थित होते हैं। और योग कर्मसु कौशलम, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करिए। तो योग में स्थित होकर कर्म जब आप करेंगे तो ये कौन सा योग? अब योग आ गया, ये कोई वो वाला योग तो है नहीं कि मतलब हलासन और मयूरासन और वो वाला योग। योग क्या है? यहाँ पर वो जिस योग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है कि जो आपका आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है, जीवन की सत्य को, इस ब्रह्मांड के सत्य को जानकर जो आप कार्य कर रहे हैं, वो योग की आप उसमें स्थित होकर आपको अपना कर्म कर रहा है। तो अब यहाँ से वो कर्म योग चालू होता है। तो कर्म योग, क्योंकि पहले 2 अध्यायों में वो काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं अर्जुन को, कि बुद्धि योग की भी बात कर देते हैं कि बुद्धि श्रेष्ठ है, अब तुम्हें कर्म भी करना है, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, आपने तो इतने सारे रास्ते बता दिए, आपने तो मुझे भक्ति भी बता दी, आपने मुझे युद्ध भी बता, कर्म भी बता दिया, आपने मुझे ज्ञान योग भी बता दिया, और ऊपर से कह रहे हो बुद्धि श्रेष्ठ है। और बुद्धि और ज्ञान योग ये है कि मतलब सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है, और सब कुछ ऊपर सब है, ये सब माया है, मिथ्या है। तो जब माया है, मिथ्या है, तो मैं बैठ जाता हूँ, अल्टीमेटली जो होना है वो होगा, और मैं बैठ के कुछ नहीं करता। लेकिन वहाँ पर उन्होंने बोला कि वो जो ज्ञान है, सत्य ज्ञान ये है कि आपको अपना कर्म करके आपको एक ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, एक रास्ता है जो आपको ट्रैवल करना है। यदि आपको अहमदाबाद से राजकोट जाना है तो अहमदाबाद से राजकोट के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, और यदि उसमें एक टनल भी आती है तो आपको वो टनल से भी पास होना पड़ेगा। तो वो चीज़ को समझना कि मुझे मेरा कार्य करते हुए जिस हेतु के लिए ब्रह्मांड ने मुझे बनाया है, इस पूरे नेचर और प्रकृति ने जो मुझे बनाया है, वो किसी हेतु के लिए बनाया है। और वो किसी, ये तो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति में असंख्य जीव हैं, हर जीव का एक पर्पस है, हर जीव का एक कर्म है, एक धर्म है। तो वो धर्म जैसे ही वो जान लेता है उसके हिसाब से कार्य करता है। अब जीव है तो उसको पता है मुझे खाना इकट्ठा करना है, मेरे छोटे बच्चों की रक्षा करनी है, मुझे अपनी प्रोजेनी बढ़ानी है। लेकिन जब इंसान का, क्योंकि इंसान का जो इंटेलेक्ट है थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड है, और उससे भी ज़्यादा इंसान के सेंसरी ऑर्गन्स और इमोशंस ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंसान के माइंड में वो जो इमोशंस हैं वो उसको कंफ्यूज कर देते हैं। और वो कंफ्यूज होने की वजह से आदमी जो है वो अपने धर्म की वजह से नहीं, अपने कर्म की वजह से नहीं, कर्म और धर्म लगभग एक ही हैं। कर्म आप करोगे वो जो आपका धर्म है, तो उसकी तरह से कार्य ना करने की बजाय वो सेंसरी ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य करने लग जाता है। अब कोई चोर कहे कि भाई मेरा कर्म तो चोरी करना, भाई तुम चोरी करने के लिए थोड़े पैदा हुए हो, तुम चोरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हो। चोरी जैसी तो कोई नेचर में प्रवृत्ति ही नहीं है कि मैं चोरी करने के लिए पैदा हुआ हूँ, आप चोरी करोगे तो आपका कर्म चोरी करने का नहीं है। तो वहाँ आप चोरी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने ईगो से ड्रिवन हो रहे हो, आप अपने इमोशन से ड्रिवन हो रहे हो, आप अपने सेंसरी ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रियों का ग्रेटिफिकेशन जिसको कहते हैं, इंद्रियों का
इंद्रियों को प्लीज़ करने के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देखना तो मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस पर हाथ लगाना तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, वो जो आप कर रहे हो वो सही कर्म नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार करो, और आत्म साक्षात्कार के लिए परमात्मा में स्थित होकर, परमात्मा के बारे में जानकर कि परमात्मा पूरा एक ही है और परम सच्चाई श्री कृष्ण है, तो कहते हैं श्री कृष्ण में आप ध्यान लगाकर, आप मुझ में ध्यान लगाकर आप कार्य करो, और मुझ में ध्यान लगाकर आप ऐसे कार्य करो कि यदि आप अपना कार्य वो कर रहे हो जो कि आपके लिए लेट डाउन है, जिसको उन्होंने फिर यज्ञ बोला है कि जो आप यज्ञ कर रहे हो। अब यज्ञ तो एक शब्द है, यज्ञ का मतलब जो हवन नहीं होता है। यज्ञ क्या है कि जिस किसी का भी वो धर्म है, यदि जिसका एक जॉब चार्ट दिया हुआ है, किसी का भी वो जॉब चार्ट में वो काम कर रहा है, तो वो उसका यज्ञ है, और यज्ञ से देवताओं को खुश किया गया है, तो देवता खुश होते हैं। देवता खुश होते हैं तो आपका आगे का रास्ता जो है मेरी तरफ जाने का, मतलब कि श्री कृष्ण की तरफ जाने का रास्ता जो है वो आपका खुलता है। तो वो आत्म साक्षात करके आप कार्य करो। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि फिर वो कहते हैं कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कार्य मैं करूँगा। अब वो वहाँ पर चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, और उनका आप मोटिवेट करने का, अर्जुन का आप मोटिवेशन की जो लोग कोचिंग, हम जब सीनियर लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं तो सीनियर लीडरशिप पोजीशन में आके हमारा काम जो है वो हमारा काम खुद काम करने का नहीं होता। कई बार हमको लोग कहते हैं कि आप क्या करते हो, आपके सबॉर्डिनेट सब करते हैं। अब बड़े प्रश्न है, सच में हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, काम तो सारा जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो किसान खेती कर रहा है, उसको उसकी एप्लीकेशन कोई और प्रोसेस कर रहा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं। और मैनेज में हम क्या कर रहे हैं, अब उनसे काम ले रहे हैं, तो हम तो कुछ काम कर ही नहीं रहे एक्चुअली देखा जाए तो। पर वहाँ पे पूरे मैनेजमेंट आता है, और उसमें लीडरशिप है, उसमें मोटिवेशन है, उसमें डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सब है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व है। तो मोटिवेशन में उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों चीज़ों को उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए यूज़ किया है। उन्होंने अर्जुन को बोला तुम ऐसा करोगे, युद्ध करोगे तो यही अच्छा है, यही कार्य करना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है, यही सब है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि यदि तुम नहीं करोगे तो तुम हानि को प्राप्त होगे, तो सब जगह तुम्हारी थू होगी, सब कहेंगे कि देखो ये तो युद्ध छोड़कर भाग गया। फिर उन्होंने वहाँ तक भी कहा है, एक जगह उन्होंने इनको कुरुनंदन कह के बोला है, कुरुनंदन। अब वहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुरुनंदन तुम तो कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हो, तो फिर तुम ही राज करनी चाहिए। तो भेद भी उन्होंने यूज़ किया है, और फिर साथ में दाम भी उन्होंने यूज़ किया है कि तुम यदि जीत जाओगे तो इन सब का जो साम्राज्य है वो तुम्हें मिल जाएगा, और तुम फाइनली विजय हो जाओगे, प्रॉस्परस हो जाओगे, तुम्हारा यश बढ़ेगा, महिमा बढ़ेगी। तो हर तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया है। तो ये मोटिवेशन का बहुत अच्छा वहाँ लेसन है, और एक बहुत ही प्यारी चीज़ उन्होंने यूज़ करी है जो कि आई डोंट नो सबका ध्यान जाता है नहीं जाता है, कि चैप्टर 2 के हर श्लोक में लगभग सभी श्लोकों में उन्होंने अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से पुकारा है। और उन्होंने अर्जुन को अर्जुन बहुत कम जगह बोला है, उन्होंने उसको महाबाहु भी बोला है, उन्होंने उसको पृथु भी बोला है, उन्होंने उसको पार्थ भी बोला है, उन्होंने उसको कुरुनंदन भी बोला है, और बहुत सारे नामों से बोला है। जहाँ पर जो उन्होंने मैसेज दिया है वहाँ पर उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया है। तो किस तरीके से हम सामने वाले इंसान की ईगो बढ़ाकर उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको ये बताकर कि तेरे अंदर ये क्वालिटी है, हम उसको मोटिवेट करके और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण चैप्टर 2 में मिलता है हमें श्री कृष्ण के प्रवचन में, और ये एक बहुत ही एबल
और टैक्टफुल लीडर ही इस तरीके से मोटिवेट कर सकता है कि पूरे प्रोसेस के दरमियान उन्होंने कहीं भी अर्जुन को ढीला नहीं पड़ने दिया। और एक और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि श्री कृष्ण चाहे तो खुद ख़त्म कर सकते थे सब कुछ, चाहे तो लड़ते तो एक बार में ही सब खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारथी बनना पसंद किया। उन्होंने सारथी बनना पसंद किया क्योंकि एक अच्छा लीडर जानता है कि मैं खुद सब कुछ नहीं कर सकता, मुझे लोगों को इन्वॉल्व करके उनके थ्रू अपने कार्य को आगे बढ़ाना है और मुझे एक जनरल ओनरशिप मेरे विजन की सबको देनी है। इसलिए उन्होंने सारथी बनने का चूज़ किया और एक डायरेक्शन दिया, एक विजन दिया, डायरेक्शन दिया। आज आप सोचिए, सोचने की बात है कि यदि भगवत गीता नहीं होती तो महाभारत को हम कैसे देखते, महाभारत को हम कैसे देखते। आज इसी का पैरेलल यदि हम मानते हैं तो अब हम रामायण में जाते हैं। रामायण में जब सीता को राम ने छोड़ा लंका से आने के बाद, वहाँ पर कोई भी ऐसा फिलोसॉफिकल ट्रिटाइज नहीं है जो कि भगवान राम के कार्य को इलेबोरेटली दार्शनिक तरीके से एक्सप्लेन कर सके। इसलिए हम हर तरीके का व्यू उसमें लेते हैं। कोई कहते हैं उन्होंने गलत किया, कोई कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए सही किया, तो वहाँ डाउट्स छोड़ दें। लेकिन यहाँ पर इनको पता था कि ये डाउट्स रह जाएंगे सबके दिमाग में, क्योंकि काम बहुत बड़ा था। इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार, इतना ब्लडशेड, इतना सब कुछ प्रलय होने वाला था, तो उसको यदि हम जस्टिफाई ढंग से नहीं करेंगे कि क्यों किया गया ये, इसमें विश्व की क्या भलाई थी, तो ये किसी के भी आगे समझ में नहीं आएगा और इससे उत्पन्न होने वाला लाभ जो है वो गैर लाभ में बदल जाएगा। इसलिए बहुत ही एक अच्छे तरीके से उन्होंने उस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश की है कि ये इसलिए ज़रूरी है और इसका ये फ़ायदा है और ये मुक्ति का मार्ग है, ये फ़ायदे का मार्ग है, ये विश्व शांति का मार्ग है। एक जगह एक दो मुद्दे और मैं बताना चाहूँगी। एक तो है स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट, इक्वानिमिटी जिसको हम बोलते हैं, कि ना तो कि जब आप कार्य कर रहे हो तो कौन सा मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य होता है, कैसे कर्म किया जाए तो कैसे किया जाए, तब उसका ये तो उन्होंने बता दिया कि कुशलता से किया जाए, तो उसके पीछे जो भावना होनी चाहिए, जो उसकी फीलिंग होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने स्थित प्रज्ञ का कि आप साक्षी भाव से देखो उसको और ना उससे बहुत विचलित हो, उससे आसक्ति नहीं रखने की है। यदि कुछ जीवन में खराब आता है तो बहुत दुखी नहीं होने का, और यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो बहुत खुश नहीं होने का। एक जो बच्चा होता है उसको, बच्चे को यदि हम कुछ उसके मनचाहा खिलौना दे देते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है, और यदि उससे हम खिलौना छीन लेते हैं तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो वो जो इंसान की बेसिक प्रकृति है उसको कंट्रोल करके, हमारी सेंसेस को कंट्रोल करके किस तरीके से जीवन हमें यापन करना है वो उन्होंने बताया है। और साथ में 16वें अध्याय में फिर उन्होंने 26 अच्छे गुणों की बात करी है कि 26 अच्छे गुण क्या क्या इंसान में होने चाहिए जिससे उसको ये जो मार्ग है, ये जो कर्म है वो उसका आगे बढ़ता है, किस तरीके से कर्म करना चाहिए, वो वर्चूज़ क्या, वो क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देवी क्वालिटीज़ और असुरी क्वालिटीज़ उस वक्त अपनी डेफिनेशन में यूज़ करी है। लेकिन एक अच्छे आदमी में क्या क्वालिटी होती है, अच्छा आदमी कौन, वो जो समाज में हार्मनी लाए, विश्व में हार्मनी लाए, और ख़राब आदमी कौन, जो हमारे विश्व का, समाज का ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे गुण बताए हैं, जैसे दान है, शील है, प्योरिटी है,
भक्ति है, इस तरीके के 26 गुण उन्होंने बताए, कंपैशन है, और साथ में उन्होंने इविल क्वालिटीज़ भी, ख़राब क्वालिटीज़ भी बताई हैं जो असुरी शक्ति होती हैं, जो इंसान को पीछे धकेलती हैं, जैसे कि गुस्सा है, घमंड है, ये सब चीज़ें। और ख़ास करके गुस्से पर उन्होंने बहुत भार दिया है कि जब गुस्सा करता है इंसान तो गुस्सा करने से आपकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और मति कैसे भ्रष्ट हो जाती है? मति ऐसे भ्रष्ट हो जाती है कि आपकी मेमोरी जो है वो सेलेक्टिव मेमोरी हो जाती है कि आपको वही चीज़ें याद रहती हैं, मतलब पूरी मेमोरी जो है वो टेंटेड हो जाती है आपकी, और आपकी जो माइंड है वो रैशनली एक्ट नहीं करता। इसलिए जो भी हम काम करें वो हमें ठंडे दिमाग से, सद्बुद्धि के साथ, बुद्धि योग में रह के करना चाहिए। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी बहुत हैं, आइडियोलॉजिकल भी बहुत हैं, लेकिन देखा जाए तो काफ़ी व्यवहारिक ज्ञान है। और व्यवहारिक ज्ञान का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है कि आप जब कार्य करते हैं तब आप ये मान के कार्य करिए कि आप देवता को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि देवता ने आपके लिए ये कार्य बताया है। तो देवता को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो बड़ा सिंपल सी, और उन्होंने आगे बताया कि ये देवता आपको मुझ तक पहुंचाते हैं। तो यदि हम ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में बड़ा क्लियर है कि जो काम आपको दिया गया है, आपके बॉस ने दिया है, वो आपका देवता हुआ, और जो काम या आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है या आपका ड्यूटी चार्टर है या जो कुछ भी है, आप उसके लिए कार्य करिए। आप अपना एजेंडा मत बनाइए। आप अपना एजेंडा बनाएंगे तो आप जो भी कार्य करेंगे वो उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला, उल्टे आप मैस क्रिएट करेंगे। समाज तभी चलेगा, विश्व तभी चलेगा जब हर आदमी अपना दिया हुआ काम करे, देवताओं को खुश करे। मतलब ये जो रूलर्स हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनकी पहुंच भगवान श्री कृष्ण तक है, ये उनका बड़ा व्यवहारिक एंगल है। ये किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी उन्होंने बताई है कि वो आपको मुझ तक पहुंचने में मदद करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बताया, ये भी एक बड़ी व्यवहारिक सी चीज़ है कि कुछ लोग मुझ तक सीधे भी पहुंच जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं जो सीधे पहुंच जाते हैं? आपने भी पढ़ा होगा, भक्ति योग। जो मेरी बहुत भक्ति करते हैं वो मुझ तक सीधे भी पहुंच जाते हैं। तो वो सीधा पहुंच सकते हैं मेरे तक। तो नॉर्मली यदि आप किसी आदमी की बहुत भक्ति करेंगे, टोटल सरेंडर के साथ भक्ति करेंगे, तो आप उस पर्सन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ज्ञान योग को श्रेष्ठ योग बताया कि हर आदमी वो नहीं कर सकता। आपके लिए, इंसान के लिए वही है कि आप अपना कर्म करें, दूसरे का कर्म दूसरे पर छोड़ें, अपना कर्म खुद करें, कंफ्यूज ना हो और अपने रास्ते पर चलते रहें। तो इस तरीके से हमें काफ़ी सारी बातें, ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब गीता तो बहुत डीप है और मैनेजमेंट भी बहुत डीप है, दोनों ही विषय बहुत डीप है और दोनों विषय का समन्वय। और मुझे तो लगता है कि ये विषय जो है हमारे सिलेबस में, करिकुलम में बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड है। इसको काफ़ी कुछ करिकुलम के तौर पे हमारे विद्यार्थियों को सिखाया जाना चाहिए और किस तरीके से वो लोग एक अच्छा जीवन यापन करके एक अपने लिए अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते हैं, इस तरीके का। क्योंकि आज की इतना स्ट्रेस, इतना कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने बहुत स्ट्रेस के लिए भी बोला है कि जो तुम कर्म कर रहे हो वो कर्म करने के बाद मुझे समर्पण कर दो। वहाँ भी बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत व्यवहारिक बात कही है उन्होंने कि वो मुझे सरेंडर कर दिया, वो मुझे सरेंडर कर दो, अब मुझे देखने दो कि उसका क्या करना है, तुम भूल जाओ क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी अपना कर्म कर रहे हो मुझको आप दे दो, मतलब मुझको सरेंडर कर दो। तो वहाँ पर आप टोटली स्ट्रेस से रिलीव हो जाते हैं कि अब मैंने ये, मुझसे ये हो गया या मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अपना काम है वो करा और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दिया। तो वो भी एक बहुत अच्छा पहलू है। तो आज शांति से आप लोगों ने मुझे सुना, थोड़ा बहुत
इस विषय को समझने की कोशिश है। जितना बाकी तो जितना हम खुद समझते हैं वही आत्मज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार ही श्रेष्ठ है। और अनुभव जब मैं देखने से आपको विश्वास नहीं होता, सूंघने से भी नहीं होगा, सुनने से भी नहीं होगा, जब हम करते हैं तब उससे आपको अनुभव होता है। तो जब हम अनुभव करते हैं इस चीज़ को तब हमें रियलाइजेशन होता है। तो आप लोगों ने बड़ा शांति से सुन के और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपसे बात करने की। आई एम thankful to you and thank you to organizers. Thank you very much. कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, 5-7 मिनट हैं हमारे पास। एनी क्वेश्चंस? So is there any question that we can ask ma'am, or should I ask her one question to clarify? I think it's a bit odd that I'm sitting and she's You should be giving the answers, not asking questions. No, so please save your questions no, for yourself. I think I'll ask just one question, because that's a question we all have as Indians when we have to talk about anything Indic. You know, it gives us a very strong karmic experience because nobody is interested in what we are saying. And we still have to do our karma of sharing the knowledge. That is very Indian. So I understand that she is also passing through the same frustration that a lot of us pass through, is that we don't have audience for Indian knowledge. So what is the way we can create that? As an administrator, I'll have to ask you that how do we bring Indian knowledge to that respectability, that people listen to us, this audience becomes far larger than what it is. What is the way out? I do not agree with your question. Indian knowledge is highly respected all over the world. पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। जहाँ तक दर्शन शास्त्र का सवाल है, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाइए, वो भारतीय दर्शन शास्त्र को सबसे श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र मानते हैं। लेकिन हमारी पहुँच तभी तक हो पाएगी ज़्यादा जब हम खुद अपने आप पे बिलीव करेंगे। तो हमें वहाँ बाहर नहीं, हमें अपने अंदर अब इस इशू को एड्रेस करना है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो इस इशू को समझे, इस दर्शन शास्त्र को समझे। मैंने बताया, जैसे जब मैंने दर्शन शास्त्र वेदांत पहली बार पढ़ा तो तब मुझे समझ में आने लगा कि इतना गूढ़ है। तो कहीं ना कहीं हमें वेदांत और भगवद गीता को बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस करना चाहिए एज अ बेसिक करिकुलम। खाली कह देने से कि वो छोटा 1-2 चैप्टर पढ़ाने से वो बहुत लिप सर्विस होता है, क्योंकि इतना गहरा है कि हमारे बच्चे समझ ही नहीं पाते इसको। और हमारे बच्चे नेचुरली वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, हम लोग भी वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। तो जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस रहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है। वर्ल्ड तो ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड इट्स अ फ्लैट वर्ल्ड। बट देन हमें अपनी जो हमारी खुद की हेरिटेज है, जो हमारी रूट्स हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे तो ऊपर अपने आप फ़ायदा होगा। विश्व हमको मानता है, हमें अपने आप को मानने की ज़रूरत है। Thank you very much. Is there any question from the audience? Yes. Let's just speak loudly. It's okay. So, ma'am, as you told that in your introduction that you are from Mic. Is it correct or I was wrong? No, you're correct. Please go ahead. You are from science background and you had chosen the management as in next in your graduation period. So, in your interview, is there anything that they had asked you the panel that you had chosen the science background, then you might go to the science? I think I have understood your question. So he's basically trying to get a UPSC hint. What did they ask you in the interview
Was there anything about science in it? In your UPSC interview, what did they ask you? Was it about science or management? यूपीएससी तो देखो, मैंने तो यूपीएससी बहुत साल पहले किया है, 33 साल हो गए, 33 इयर्स। तो बट बी नेचुरल। मैं तो इंटरव्यू तो नहीं बदलेगा। आई एम ऑल्सो पैनलिस्ट फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। तो यूपीएससी इंटरव्यू में भी कोई भी आप जाओगे तो यू एक्सपेक्ट द पर्सन टू बी नेचुरल। आप कोई ढकोसला लगा के जाओगे तो इतने एक्सपर्ट्स वहाँ बैठते हैं कि आपको आप एक्सपोज कर दोगे अपने आप को। लेकिन आप नेचुरल रहोगे और जो है वो रहोगे तो आपको इसमें कोई परेशानी कभी होगी नहीं। और जहाँ तक विषय का सवाल है तो कोई तो विषय की कोई लिमिट ही नहीं है। इसके लिए जब बच्चे कई हमारे काउंसलिंग के लिए आते हैं, कुछ आते हैं जनरली भी, कि एक इसे इंटरव्यू मनूवरिंग कहते हैं, इंटरव्यू मनूवरिंग, हाउ यू मनूवर इन एन इंटरव्यू। और इंटरव्यू मनूवरिंग में देखिए, इंटरव्यू को कहाँ ले जाना है वो अपने हाथ में होता है। हाँ, आपके इंटरव्यू को आप कहाँ ले जाओगे तो मैडम अपने खुद के हाथ। कृष्ण के हाथ में था कि अर्जुन के हाथ में था कि गीता खुद के हाथ में होता है। ये कैसे, मैं बताती हूँ आपको। जो वहाँ लोग आते हैं, कोई पढ़ के नहीं आता, कोई भी पढ़ के नहीं आता। जो 7-8 पैनलिस्ट पढ़े बैठे रहते हैं, उतना भी उनके पास टाइम नहीं होता है कि आपका पूरा वो बायोडेटा देख सके। लेकिन उनको ज्ञान बहुत होता है, नॉलेज होती है, उनको अलग अलग विषय की नॉलेज होती है। और इतना अथाह है, और 8 पैनलिस्ट हैं, हर कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता। उनको भी नहीं पता है कि वो भी चाहते हैं कि आपसे उत्तर मिले। तो जब आपसे उत्तर मिलेगा तभी आपकी नॉलेज की डेप्थ को वो समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो भी ऐसे सवाल पूछना चाहते हैं जो आपको आते। इसलिए उसको मैन्यूवरिंग कैसे करते हैं कि आपको सामने पैनलिस्ट के दिमाग में थॉट्स डालने पड़ते हैं, सजेशन देना पड़ता है। ठीक है, अब आप सपोज उनके दिमाग में आप शब्द डालोगे इजराइल, तो आप कहीं से भी वो, अब आप इजराइल पे एक्सपर्ट हो सपोज, या लेट अस नॉट टेक पॉलिटिकल, सपोज आप क्रिकेट के फ़ैन हो। ठीक है, अब आप क्रिकेट के यदि फ़ैन हो और आप चाहते हो कि आपसे क्रिकेट पे ही सारे सवाल पूछे जाएं, तो आप क्या कर सकते हो कि पहली लाइन जो वो आपसे पूछेंगे कि आज आप कैसे हो या कहाँ गए थे, कुछ एक आइस ब्रेकिंग 1-2 लाइन्स होती हैं, उसमें जैसे ही आप क्रिकेट बोलोगे वो क्रिकेट को पकड़ लेंगे। आपको बॉल फेंकनी है और उनसे कैच करवानी है। जैसे ही आप उन्होंने आपकी बॉल कैच करी, आपको क्रिकेट पे सवाल आने लग जाएंगे। ये एक टैक्टिक होता है इंटरव्यूज़ का। तो ऐसे कुछ इंटरव्यू में ये नहीं होता है कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते। इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। कर्म का या बुरे कर्म का, लेकिन द्रोण ने जो एकलव्य को अन्याय किया, इसका फल द्रोण को कहीं भी नहीं मिला और कहीं भी कृष्ण ने इसको क्रिटिसाइज नहीं किया। तो क्या कृष्ण वर्ण व्यवस्था को पुरस्कृत करते थे? ये मेरा सवाल। बहुत गहरा सवाल है। ये तो आप स्ट्रिक्टली भगवत गीता के टर्म्स में जाए तो फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप उसकी चिंता छोड़ दो, है ना, आप उसकी चिंता छोड़ दो कि फल क्या मिलने वाला है। अब जो कर्म होता है, अब कर्म तो एक अलग लाइन है, वो कि संचित कर्म होते हैं, आपका प्रारब्ध होता है। अब इसमें से बैंक अकाउंट है, इसमें से इतने के साथ आप पैदा होते हो, इतने आप ऑन करते हो, इतने माइनस करते हो, इतने आप वापस लेके जाते हो, इतने जीवन में भुगत के जाते हो। तो वो एक इटसेल्फ में बहुत ही ज़्यादा एक डीप और डिटेल्ड सब्जेक्ट है कि कर्मों का हिसाब किताब अब कौन रख रहा है, कौन नहीं रख रहा है। ये सृष्टि रख रही है, या ऊपर ब्रह्मा जी रख रहे हैं, या ऊपर कोई और रख रहे हैं, या कोई स्पेशली अलग से अकाउंटेंट बना हुआ है, किसी को नहीं पता है। पर एक मिनट,
एकलव्य हुआ? अब भगवत गीता तो इस इशू में जाते ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि आप कर्म को फल के साथ अटैच करो ही मत, और कोई भी कर्म जो है फल के साथ आप अटैच, एक मिनट मैम, एक मिनट, तो कर्म को आप फल के साथ अटैच मत करो कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। जैसे ही आपने कर्म करते वक्त फल के बारे में सोच लिया, वहाँ पर आपकी आसक्ति डेवलप हो गई ना, और आसक्त भाव से यदि आप कर्म करेंगे तो वो तो सख्त बनाई की गई है, आसक्ति तो आपको डेवलप करनी ही नहीं है। उसका फल जो है उसके साथ अभी अटैच करना नहीं है। आपको बुरे कर्म इसलिए नहीं करने हैं कि वो उसका फल बुरा मिलेगा। वो तो भगवत गीता की जो फिलॉसफी है वो तो इसको बिल्कुल इस लाइन पे जाती ही नहीं है। बुरे कर्म आपको इसलिए नहीं करने हैं क्योंकि वो कर्म जो है वो आपकी सद्बुद्धि से प्रेरित नहीं है। तो कर्म कैसे करने चाहिए? जो कर्म आपकी सद्बुद्धि से प्रेरित हो, जो विश्व शांति और विश्व का संतुलन बनाने का काम करे, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, और सबसे बड़ी बात जो आपके धर्म के अनुरूप हो, वो कर्म हमको करने चाहिए। तो यदि विद्यार्थी जो है वो पढ़ने के अलावा कोई और कार्य कर रहा है तो उसके कर्म के अनुरूप नहीं है। अब वो कहे अच्छा फल और बुरा फल, वहाँ तो हमें जाना ही नहीं है। फल के साथ अटैचमेंट तो करना ही नहीं है, आसक्ति करनी ही नहीं है। जैसे ही आपने सोच लिया अच्छा फल और बुरा फल, प्रॉब्लम सारी वहीं तो आई थी कि अर्जुन सोचने लगे कि मैं खराब कर्म कर रहा हूँ, मैं सबको मार रहा हूँ, तो मुझे इसका फल बुरा मिलेगा। तो वहीं पर उन्होंने उसको काटा है कि नहीं, तुमको इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि तुमको फल क्या मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम फल के बारे में सोचो ही मत, तुम अपना कर्म किए जाओ कि तुम्हारा कर्म क्या है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस टू यू। થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર ડૉક્ટર અંજુ શર્મા મેડમ અને સમીર શુક્લ મેડમ. ખૂબ ગહન વિષય હતો છતાં પણ સમીરભાઈએ સરસ રીતે વાતને કંડક્ટ કરી અને આદરણીય અંજુ મેડમે એ વાતને આપના સુધી પહોંચાડી. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ તાળીઓ સાથે બંને મહેમાનોને આભાર માનું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.